So today we are going to start simplex method. Okay. So yesterday I have discussed something about simplex. What is the procedure? So as we have done in graphical method, we were finding the solution, optimal solution, है ना, by moving from one extreme point to another extreme point. So generally what we do basically, in search of optimal solution, we move from one extreme point to another extreme point, है ना, and check all the extreme points. And the extreme point which gives you the maximum or minimum value depends on the problem. It's called the optimal solution. You know this thing, thing we have done in graphical method already. So same concept is applicable for this simplex method also. Here also we will be moving from one vertices to another vertices or extreme point in search of solutions. So we will start with some system of equation. We will make a basis matrix by taking some non-basic variables to 0. Same procedure which we have done by taking NCM ways. So n minus m variable putting to 0, that is non-basic variables, and then taking m variables. So we will start with some initial basic feasible solution, and then we will be checking all the basis elements. क्योंकि जो basis elements होंगे, that will give you the optimum value. If it is not giving you optimum value, we will enter some new elements in the basis and removing the old elements. So it is the procedure: taking new basis elements, finding the value. If it is optimum, then okay, we are done. Otherwise, remove old basic variable with the new basic variable. So can I start direct with the problem, or should I explain first algorithm and then start? Tell me, students. एक प्रॉब्लम कर लूं डायरेक्ट, या पहले एल्गोरिथम बता दूं? What do you सर say? प्रॉब्लम से एल्गोरिदम बताइए। प्रॉब्लम से एल्गोरिदम। अच्छा चलो ठीक है। क्यों भाई अभिलाष? अभिलाष नॉट हियर? दयान खान? जी सर। पहले प्रॉब्लम बता दूं मैं एक, फिर उसमें एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर दूं? जी सर, ऐसे ही। चलिए ठीक है, चलो तो सो लेट अस टेक वन प्रॉब्लम. So I am taking one problem. This problem number is 411. Problem number 1. Just a minute. Let me take the whiteboard here. Just a minute. Yes. So problem number I am taking 411 and page number 100. In the book 411 means 4th chapter, problem number 11. The first number shows the chapter number. So here the problem will be like use simplex method. Use simplex method to solve the following LPP. What is the LPP? Max of Z is equal to 4x1 plus 10x2 subject to the constant 2x1 plus x2 less than equal to 50 and 2x1 plus 5x2 less than equal to 100 and
2x1 plus 3x2 less than equal to 90. 90, yes. Okay, so these three constants are given to you with the two decision variables, and of course these feasible condition are always given to you, x1 non-negative, x2 non-negative. So here you know this problem can be solved by graphical method also, because it has only two key decision variables. But here they are asking use simplex method to solve this, so I will use the simplex method. So what is the first step? Here I am explaining the algorithm, and then separately I will write the steps. First thing is what? Your problem should be always maximization type. When you are starting in simplex method, it should be in maximization type, so which is already given in the problem. If it is not so, I will change the minimization problem to maximization problem by taking minus sign, है ना, which I have explained you earlier. कि अगर minimization की problem है, you can change it to maximization, but here it is already maximization problem. So first step is already done. Now second thing, I will write all these things into equalities, है ना, same thing which we have done in graphical method. पहले हम equality लिख के उसकी line draw करा करते थे. Here I will convert all the inequalities into equalities. Okay, keep in mind कि all these b they should be positive. ये जो right hand side के constant है they should be positive. अगर ये नेगेटिव होते तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले इन्हें पॉजिटिव बनाऊंगा हमेशा. योर बी शुड बी पॉजिटिव. सो हियर यू नो, because all the inequalities are less than equal to, so how I can convert in these inequalities into equalities? How can I convert? Tell me. सर select surplus तो सर 2x plus 1 is equal to 50. Select variables. Surplus नहीं, सिर्फ select. Select variables. क्योंकि सारी इक्वलिटी लेस देन है, so I have to use the select variables. Okay, so I am taking let, you can take s1 s2 s3 or you can take y3 y4 y5, है ना, ये डिपेंड्स करता है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में दे आर यूजिंग y3 y4 y5 एज अ सिलेक्ट वेरिएबल्स या सरप्लस, तो आई एम यूजिंग दैट थिंग ओनली. सो लेट y3 y4 y, क्योंकि तीन लेने आपको तो हमने इसे y से डिनोट कर दिया. y3 y4 y5 बी द सिलेक्ट वेरिएबल्स. Select variables. These are just the notation you can use any according to your convenience. So what will happen then? अब जब select variables ले लिए तो you will write again your LPP. So in LPP when you will write, so you know this is the LPP, है ना, but when you are using some variables you have to put the variables in the objective function also. But you know these are the variables which we have considered for solving this LPP. So its cost value will always be 0, है ना. They will not have any effect on the objective function because these are the variables which we are considering for solving this LPP. तो इसको मैं objective function में लिखूंगा but with the 0 coefficients, 0 y3, 0 y4, 0 y5, है ना. They don't have any cost value, लेकिन I will have to write it here. They have role in solving the simplex method, problem by simplex method. First step you have to write this. Second, now write all the equation in equalities. So you can write it here, 2x1 plus x2 and plus, suppose I am adding here y3, so this will equal to 50. Now it becomes equality because I am adding select variable. Second equation is 2x1 plus 5x2 plus y4. So I am writing here y4, है ना, one step ahead because I want to form one matrix form, इसलिए चाहे तो y3 यहाँ लिख दो या इसका मतलब कि y3 is here not here, so you can write plus y4 somewhere here in the next step is equal to कितना था 100, and last equation 2x1 plus 3x2 and plus y5 is equal to 90. Here they are the feasible condition. यहाँ पे हम कुछ नहीं ऐड करते हैं ना. They don't have any, there no need to add select surplus. And keep in mind these select variables they are also non-negative, है ना, keep in mind. So here all
x1, x2, y3, y4, y5, they are greater than equal to 0, of course. So this is the first thing you will write your new LPP. Is it clear? Yes? Yes, sir. Good. Now you know you have 3 equations, है ना? 1, 2, 3, and you have how many unknowns? 1, 2, 3, 4, 5 unknowns, है ना? So first thing will be what? I will put, you know, here n is equal to 5. n क्या था आपका? Number of unknowns. जो Yes, बेसिक sir. क्वेश्चन में बात कर रहे थे, है ना? Unknowns. क्योंकि now it is a system equation. System equation ही है आपकी ये. And m is how much? 1, 2, 3 constants. Okay, you know this thing? Yes, sir. It means what? N minus m. That means 5 minus 3 is equal to 2 variables will be, 2 will be what? 2 will be non Non. basic variables. ये तो बताया था आपको मैंने कि जो n minus m होंगे they will be non basic variables. बताइए इसको हमें क्या करना होगा? 2 variables को हमें क्या करना होगा? We have to put what? 0. If you want to solve the system equation, तो what we do, we take m cross m matrix. 3 by 3 की कोई एक मैट्रिक्स लेंगे यानी कि वैल्यूज लेंगे. उसके लिए you have to put n minus m यानी कि 2 वेरिएबल्स को 0 पुट करते हैं हमेशा, है ना? जिन्हें 0 पुट करते हैं वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहलाते हैं. एंड विच यू विल सॉल्व द सिस्टम, दे विल बी कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स, है ना? तो आई हैव द चॉइस कि 2 में कितने ले सकता हूँ. तो आई हैव 5cm, 5c, 5c, 3 चॉइसेस, यानी कितने हुए? 10 चॉइसेस हो गए आपके पास, है ना? तो इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? ये बताइए. Yes, sir. भैया वही चीज है जो आपने अभी लास्ट क्लास में कर रहा था, आपका फाइंडिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो उसमें आप क्या कर रहे थे? आपने चेक किया कि हमें m वेरिएबल्स लेने हैं, तो n माइनस m को 0 पुट किया था आपने. तो एक बार x1 0 पुट किया, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी. फिर सॉल्व किया, फिर x2 को 0 पुट किया, फिर x3 को. तो यहाँ पर आपके पास 2 है, तो यू हैव टू पुट 2 वेरिएबल 0. देखो यहाँ पर जब मैं 2 वेरिएबल 0 पुट करूंगा तो आई कैन पुट x1, x2, आई कैन पुट x1, y3, आई कैन पुट एनी चॉइस आई हैव. बट आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद द इनिशियल बेसिक, जो कहलाएगा आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. इट शुड बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस व्हाट? ऐसा सॉल्यूशन जो आप इजीली निकाल सकते हैं. तो देखो अगर मैं यहाँ पर x1, x2 को 0 पुट कर दूं, I have choice कि I will have to choose 2 non basic variables to 0. तो अगर मैं x1, x2 को 0 पुट कर दूंगा तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है y3 will be 50, y4 will be 100, y5 will be 90, है ना? होगी नहीं होगी? तो it will be the easiest way कि firstly always put the variables which are not forming identity matrix. क्योंकि ये एक मैट्रिक्स बनेगी आपकी. देखिए if you see here this thing you can write, अगर मैं इसको मैट्रिक्स A मान लूं, है ना, suppose, तो here I am writing here. So your matrix A will be what? इसकी मैट्रिक्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस है. तो your matrix A will be what? So 2 1 1. हाँ, A is equal to, you have 2 1 1 0 0. ये आपका सिस्टम ऑफ 5 by 3 by 5 का. Then 2 5 0 1 0. Then 2 3 0 0 1, है ना? ये एक आपकी एक कोएफिशिएंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ना? तो क्या करना है हमें? ये तो थी आपकी. अब इसमें से आपको m by m चूज करनी है. इट इज योर कितने बाय कितने की है? 3 by 5. 3 by 5, है ना? तो आपको 3 by 3 मैट्रिक्स चूज करनी है जिसे हम सॉल्व कर सके. तो यू नो कि अगर मैं x1, ये आपके किसके करस्पॉन्डिंग है? x1, x2, ये y1 है, ये y3 है, दिस इज योर y4, दिस इज योर y5. तो हमें दिख रहा है कि हम x1 x2 0 ले लेंगे तो दिस विल बी इजी. तो ऑलवेज आई विल चूज द वेरिएबल्स x0 व्हिच इज नॉट गिविंग यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि y3 y. जो हम सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल लेंगे जाहिर है हमेशा उनके कोएफिशिएंट 1 होगा. ओके, so that is called your initial basic feasible solution. So here, so I will taking
x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 to get initial बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ना। इनिशियल मतलब ये आपका फर्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन है यार, आउट ऑफ 5C3। टोटल आपके पास कितने थे एनसीएम? 5C3 कितना होता है? ये 10 होता है ना 5C3। So to get initial basic feasible solution, so what you will be getting here, you can see here easily कि you got y3, इसमें यहाँ पुट कर देगा तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, I got y3 y4 y5। इसे अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं, मैट्रिक्स फॉर्म है ना, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 50, हाँ 50, 100 और 100 एंड 90। ये हमें इजीली मिल गया है ना, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे स्टेप्स ढूंढने होते हैं जिसमें कैलकुलेशन इजी हो, तो इसलिए हमने ये ले लिया। ये आपकी सिस्टम इक्वेशन अभी तो इजी थी। दिस सिस्टम इक्वेशन may have 100 constants and 150 variables, है ना। जब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे यू मे हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पर आपके पास जो मेथड्स होंगे वहाँ पे आपको इस टाइप के मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे जहाँ कैलकुलेशन इजी हो। यहाँ पर तो आपको विजिबल था इसलिए हमने आराम से कर लिया। इज इट क्लियर? तो आई गॉट y3 y4 y5। तो नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट द टेबल। अब मुझे एक सिंप्लेक्स टेबल बनानी है, उसमें हम इटरेशन करेंगे, बिकॉज आई गॉट इनिशियल वैल्यूज है ना। ये हमें इनिशियल वैल्यूज मिल गई हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगी। अगर आप इससे वैल्यू निकालें, नाउ इफ यू वांट टू सी सपोज इट इज द वैल्यू, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन? मैक्स z इज इक्वल टू क्या था? ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो 4 into 0 प्लस 10 into 0 प्लस 0, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू तो आपके पास 0 आ रही है, 0 ही आएगी है ना। सो इट मे नॉट बी ऑप्टिमम, है ना, इट मे नॉट बी ऑप्टिमम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो चॉइस थी हमें स्टार्टअप मिल गया, लेकिन ये ऑप्टिमम नहीं है। अब हमें क्या करना होगा? अब नाउ आई विल, तो ये भी आपका एक तरीके से इट विल बी वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कॉन्वेक्स रीजन, लेकिन ये आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा? अभी नेक्स्ट चॉइस पे जाना पड़ेगा कि व्हाट द नेक्स्ट वैल्यू आई कैन टेक। तो उसके लिए आई विल स्टार्ट विद दिस सिंप्लेक्स टेबल। तो सिंप्लेक्स टेबल के लिए, क्योंकि थोड़ा टेबल नीचे तक जाएगी, आई एम टेकिंग द नेक्स्ट पेज। हियर आई विल कंस्ट्रक्ट द सिंप्लेक्स टेबल। So these are the steps which you will have to use every time. So I am constructing your simplex table. ये easy है, it is very easy. आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, एक दो बार इस्तेमाल करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। सिंप्लेक्स टेबल में व्हाट आई विल टेक, फर्स्ट स्टेप आई विल टेक सीबी। सीबी का मतलब है कॉस्ट वैल्यू इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन आई विल टेक YB. YB means I will write the basic variables, and then here this I will write XB. XB का मतलब हुआ इनकी values, and here I will take all the variables X1, X2, Y3, Y4, Y5, and last will be minimum ratio. ठीक है, ये आपको स्टेप बस याद, टेबल याद रखनी कैसे लिखनी है, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो देखो YB, फर्स्टली आई विल राइट YB। YB का मतलब है आपके बेसिक वेरिएबल्स, जो आपने इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स लिए थे वो क्या थे? Y3, Y4, Y5। तो फर्स्टली आई विल राइट इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स, तो Y3, Y4, Y5। ओके। CB मीन्स इनकी कॉस्ट, CB का मतलब है कॉस्ट वैल्यू इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 0 है। Y3 Y4 की 0। ओके। नाउ व्हाट अबाउट XB? XB का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ दिस बेसिक वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू है इनकी, है ना। व्हाट इज द वैल्यू? XB मींस यू विल राइट द वैल्यू। सो वैल्यू वाज 50, its value was 100 and its value was 90. Okay, is it clear? And this Yes, X1 X2 ये आपके पास वही मैट्रिक्स है जो मैंने अभी A मैट्रिक्स लिखी थी ना, ये इनकी जो वैल्यूज है ये वही है 2 1 1। तो यहाँ पर X1 की वैल्यू आपकी जो फर्स्ट कांस्टेंट में थी तो इट वाज 2 1 1,
0 0, सेकेंड रो आपका क्या था 2 5 0 1 0, थर्ड रो वाज 2 3 0 0 1, है ना। ये जो आपने अभी ए लिखी थी, ये जो ए है ये वही है आपकी वैल्यू 2 1 1 0 0 एंड सो। तो ये आपकी इन दिस वे यू विल कंस्ट्रक्ट योर सिंप्लेक्स टेबल, इट इज योर सिंप्लेक्स टेबल। मिनिमम रेशियो का रूल अभी यूज होगा। तो फर्स्ट थिंग एज आई टोल्ड यू कि आई विल चेक कि ये जो हमने 3 वैल्यूज ली हैं ये मैक्सिमम वैल्यू दे रही है नहीं, वेदर इट इज ऑप्टिमाइजिंग द फंक्शन और नॉट। तो उसके लिए आई विल बी कैलकुलेटिंग दिस डेल जे। डेल जे इज कॉल्ड नेट इवोल्यूशन। इसकी वैल्यू होती है जेड जे माइनस सी जे, ये नेट इवोल्यूशन कहलाता है। ओके ये हम कैसे, डेल जे का मतलब क्या, आपके पास 1 2 3 4, जे इज रनिंग फ्रॉम 1 to 5, तो हर एक के लिए मैं यहाँ पर डेल 1 निकालूंगा, डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल 5। तो हाउ टू फाइंड डेल 1, देखिए। तो फर्स्टली आई विल फाइंड डेल 1। तो डेल 1 की वैल्यू क्या होगी, डेल 1 विल बी व्हाट, Z1 माइनस C1, है ना, ये फॉर्मूला है निकालने का। तो Z1 माइनस C1, Z1 की वैल्यू जो होती है Z1 विल बी व्हाट, CB Y1 माइनस C1, ये वैल्यू होती है इसकी डेल 1 की। CB का मतलब है ये, Y1 मीन्स योर फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर Y1 का मतलब X1 है। तो 0 इंटू यहाँ पर Y1 कितना है, X1 है, तो Y1 लिख लो आप या इसको X1 लिख दो। CB Y1 मतलब X1 माइनस C1। तो वैल्यू क्या होगी, CB मीन्स 0 0 0, है ना। तो CB को आप लिखेंगे 0 0 0 और X1 का मतलब इन अ कॉलम you will take the value 2 2 2 and minus C1 क्या होगा, C1 के you will write here on the top your CJ। तो CJ क्या है, CJ is the value of x1 x2 in the objective function, that means your cost values। तो cost values क्या थी 4 10 0 0 0, it will be what 4, ये CJ हम ऊपर लिख देंगे 4 10 0 0 0। तो अब ये C1 क्या हो गया, व्हाट इज C1, C1 इज 4, C2 इज 10, C3 0, C4 0, C5, सो माइनस 4। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि CB जो कॉस्ट वैल्यू है उसकी आप इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम में और फिर -4 कर देंगे, इसे आप रो में लिखेंगे, इसे कॉलम। तो जरा इंटू करो, देखो क्या आएगा, ये 0 इंटू 2, इसका इंटू क्या होगा, दिस रो इंटू कॉलम क्या आएगा, ये 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 माइनस, ये तो है, देखो ये आपकी है हाउ मच 1:3, ये है 3:1, तो फाइनली 1:1 एक स्केलर आएगा। तो ये सब क्या हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0 0 माइनस 4, सो इट इज कमिंग -4। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ डेल 1। डेल 1 का मतलब था ये जो डेल 1 है, इट इज कमिंग -4। दिस थिंग इज क्लियर। बस इसी स्टेप को रिपीट करना है हमें, अब बताइए। यस सर। क्लियर है साकिब, यस सर। अभिलाष, Yes, sir. how to find this del 1, is it clear, net evaluation? Yes, sir. यस सर। दयान खान, क्लियर है? जी सर, ये सर ऊपर x2 सर। के ऊपर और x1 के ऊपर ये 4 10 0 0 ये क्या सीजे, लिखा है बता। ये कॉस्ट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आपकी कॉस्ट वैल्यूज है ना, ये हम लिखते हैं 4 10 0 0 0। ओके, ओके सर, ओके 4 10 0 0। अब बताओ मुझे व्हाट अबाउट डेल 2। अब मुझे डेल 2 लिखना है। डेल 2 का मतलब नेट एवोल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू x2 क्या होगा, बताइए डेल 2 जल्दी से, अगर ये क्लियर है तो। -10 आएगी। -10 सही है। डेल 2 में क्या करना है, अब इसको आपको इससे इंटू करना है, डायरेक्ट आप कर सकते हो 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 5 0 प्लस 0 इंटू 3 0 -10 माइनस सीजे, तो -10 आ गई। ये बताइए क्या आएगी, Sir, 0 आएगी। 0 0 0, है ना, ठीक है। तो यस सर। एक्चुअली व्हाट विल हैपन वे इन द वेरी फर्स्ट इटरेशन में हमेशा आपका जो डेल आएगा, तो डेल 1 डेल 2 जो होगा, है ना,
करस्पॉन्डिंग टू x1 x2 वो माइनस हो जाया करेगा, और बाकी जो करस्पॉन्डिंग टू आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो हमेशा जीरो आएंगे। ये डायरेक्ट हमेशा फर्स्ट टेबल में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि आप सी जे का माइनस आएगा और ये जीरो आएंगे, क्योंकि ये हमेशा हम जीरो लिया करेंगे। ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। एक दो प्रॉब्लम करेंगे आपको खुद ये चीज ऑब्जर्व होने लगेगी कि हाउ टू राइट दिस। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। ले रहा हूँ। अच्छा, आई विल राइट आल्सो द वैल्यू ऑफ वाई जेड हेयर। सो व्हाट अबाउट जेड? जेड की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर जेड की वैल्यू आ रही थी जीरो, जेड वाज जीरो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो अब, बिकॉज here in the problem itself I am explaining you the algorithm. Now I will see what about del 1. If all the del j is greater than equal to 0, then we get an optimal solution, है ना? ये हम प्रोसेस कब तक चलेंगे? इट इज एन इटरेशन प्रोसेस। तो if all the del j, if all del j greater than equal to 0, है ना, we stop the process, ये जो सिंप्लेक्स मेथड है प्रोसेस, है ना, एंड गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। जैसे ही डेल जे सारे पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब ही ये है कि यू गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर डेल जे पॉजिटिव नहीं आ रहे, देखो, है ना, पॉजिटिव या जीरो आ जाए, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तीन तो पॉजिटिव है लेकिन जीरो है, बट टू आर नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जीरो इज नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इट मीन्स व्हाट कि नाउ वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस। यानी कि हमने जो x1 x2 को जीरो लिया था, इट इज नॉट गिविंग यू द ऑप्टिमल वैल्यू। इट मीन्स व्हाट कि हमें यहाँ पर अब किसी और वेरिएबल को बेस, ये जो आपकी वाई बी है ना, इट इज कॉल्ड बेसिस, किसी और वेरिएबल को इस बेसिस में एंटर कराना पड़ेगा और यहाँ से किसी एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेसिस मैट्रिक्स तो हमेशा 3/3 की रहेगी ना। इज इट क्लियर? तो हेयर यू विल सी कि यू गॉट del 1 नेगेटिव एंड del 2 नेगेटिव, दो नेगेटिव आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, वी विल हैव टू एंटर द न्यू बेसिक वेरिएबल इन दिस वाई बी एंड वी हैव टू रिमूव द ओल्ड वन, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज नॉट गिविंग यू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमें या तो y3 को या y4 को या y5 को, इनको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? या तो x1 से या x2 से। तो ये जो चॉइस बची आपके पास, बताइए। क्यों भाई स्टूडेंट्स? यस सर। सर y4 को क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर डेल जे नेगेटिव आ रहे हैं। तो अगर डेल जे जी नेगेटिव आ सर। रहे हैं, इट इज द इंडिकेशन वी आर नॉट गेटिंग एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर ऑप्टिमल यस सर। सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने कॉम्बिनेशन लिया था y3 y4 y5 का, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट गिविंग यू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमें यानी कि कोई और कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा 3 वेरिएबल्स का। यस सर। तो हम 1 by 1 वेरिएबल रिमूव करते हैं। तो अब हमारे पास रिमूव करने के लिए कितने वेरिएबल्स हैं? या तो y3 या 3। y4 या y5, है ना। और एंटर कराने के यस लिए सर। कितने हैं? 2। या तो x1 आ सकता है यहाँ पे, ये x2, है ना, क्योंकि अब आप एक न्यू ठीक है सर। कॉम्बिनेशन तलाश करेंगे। हो सकता है x1 y4 y5 आ जाए, हो सकता है x2 y3 y, तो वो हम कैसे निकालेंगे? यानी कि हमारा अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी वांट टू रिमूव वन वेरिएबल एंड वी वांट टू एंटर न्यू वेरिएबल। ओके, यस सर। लेकिन अब सवाल ये कि वो कैसे आएगा? हाउ टू फाइंड, हाउ टू रिमूव। पहले तो हमें रिमूव करना है, फिर एंटर करना है। उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो आपका डेल जे आ रहा है, इसमें विच डेल जे इज मोस्ट नेगेटिव। ठीक है, फॉर एंटरिंग द वेरिएबल आई विल सी विच इज द मोस्ट नेगेटिव। ओके, तो ये आई एम राइटिंग हियर। सो फॉर एंटरिंग द न्यू बेसिस, क्योंकि वो वाई बी बेसिस में आएगा, न्यू बेसिस वेरिएबल, वी सी द मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जी। अगर एक ही आता तो वही आता, लेकिन जब दो आएंगे तो आप मोस्ट नेगेटिव देखेंगे। तो मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जी आपके पास कौन सा है? ये दिख रहा है 10, है ना, इट इज द मोस्ट नेगेटिव, स्मॉलेस्ट। तो जो मोस्ट नेगेटिव होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा, दिस विल
एंटर द बेसिस। इससे हमें ये मिल जाएगा कि x2 विल एंटर, ओके, विच इज डेल्टा 2, है ना, which is -10. So this implies that x2 will enter in the basis. ये बात समझ में आ गई नहीं? पहले ही बताओ। सबसे पहले हमने निकाला कि कौन सा एंटर होगा, तो एंटर के लिए क्या करेंगे आप, जो आपने डेल जे कैलकुलेट, मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव, तो x2 एंटर होगा, एक बात पता चल गई। अब अगर x2 एंटर होगा तो आपको किसी एक को तो रिमूव करना पड़ेगा भाई, या तो y3 या y4 या y5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाउ टू फाइंड द रिमूविंग वेरिएबल। उसके लिए आई विल टेक द मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो क्या होगा कि जो आपको ये रो मिल गई है, अब ये कॉलम जो मिल गया है, इस कॉलम में आई विल फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स बी अपॉन दिस x1, है ना। तो आई विल टेक द रेशियो। तो ये आपको कॉलम एक मिल चुका है अब, है ना, दिस इज द कॉलम। इसको मैं कॉलम कर दे रहा हूँ। सपोज यू हैव दिस कॉलम, तो हमें एक कॉलम मिल गया कि x2 विल बी एंट्रिंग। नाउ आई विल फाइंड द मिनिमम रेशियो ऑफ xb। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा आपका, xb अपॉन ये जो आपके पास लिखा होता है, इसको आप क्या कह सकते हैं, x2 के एलिमेंट्स है, यहाँ पर x2 के एलिमेंट्स है। तो क्या होंगे बताइए, ये दे विल बी व्हाट, 50 अपॉन 1, 50 हो जाएगा, 50 अपॉन 1 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट रेशियो होगा 100 अपॉन 5, इट विल बी 25 या 20, 20 and then last one will be what, 90 upon 30 3 है, 30 हो आपका जाएगा, 30, 30 ठीक है। तो you can find minimum ratio, which is minimum, 20 is the minimum, है ना, it is minimum, you can see here। तो जो minimum ratio हुआ, इस ये किससे करस्पॉन्डिंग आया है, y4 के। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज दिस विल बी लीविंग, ये एरो बना दिया मैंने, ये एंटर का, ये लीविंग का है। सो बिकॉज मिनिमम रेशियो इज कमिंग करस्पॉन्डिंग, सो मिनिमम रेशियो इज करस्पॉन्डिंग टू y4, so this implies, which is 20, so this implies that y4 will leave the basis, y4 लीव करेगा बेसिस को। इज इट क्लियर? यस सर, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम जब डिवाइड करते हैं तो एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि जो आपके ये जो डिवीजर है, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ये अगर नॉन नेगेटिव नहीं हो, ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए ना, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, जीरो भी नहीं होंगे और नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो जाएंगे तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसे एज इट इज छोड़ देंगे। ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं दे शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये अगर नेगेटिव हुए क्या होगा, मैं आगे बताऊंगा, ये हमें ध्यान। तो यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ -1 आता तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता, फिर मैं सिर्फ इन दोनों में चेक करता। अगर तीनों नेगेटिव हो जाते तो हमें फिर पता नहीं चलता कि विच विल लीव द बेसिस। तीनों नेगेटिव हो जाते तो हमें मिनिमम रेशियो का भी नहीं मिलता, तो उस केस में आपका वो दूसरा इनफिजिबल या अनबाउंडेड सॉल्यूशन बनता है ना। वो मैं डिस्कस करूंगा, स्पेशल केसेस आएंगे इसके भी। तो हमें ये मालूम चल गया कि y4 विल लीव एंड x2 विल एंटर। और ये जो कॉमन एलिमेंट है इस रो और कॉलम का, ये 5 है ना, ये कॉमन एलिमेंट आ रहा है, इट इज कॉल्ड द पाइवट एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं पाइवट एलिमेंट, पाइवट, ठीक है। तो नाउ यस सर, चलो, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ये नीचे, क्योंकि मुझे टेबल को कंटिन्यू करना है अभी। इस टेबल कंटिन्यू हमें जब तक करनी है जब तक ऑल डेल्टा जे आर कमिंग नॉन नेगेटिव। तो ये स्टेप मैं इरेज कर रहा हूँ, टेबल कंटिन्यू करनी है। सो नाउ टेक मीन्स मूव अहेड। सो नाउ आई एम टेकिंग, इसी में मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा इसी टेबल को, तो इसे हमने नीचे एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ओके। यस, यस सर। बिल्कुल सिंपल स्टेप है। तो सबसे पहले आई विल राइट YB, क्योंकि YB में आपके पास एक न्यू वेरिएबल एंटर हो चुका है। सो आई विल राइट Y3, है ना, क्योंकि ये ऊपर का कॉलम वही है। तो YB मींस Y3, X4 की जगह आई विल राइट नाउ X2 और Y5 एज इट इज, है ना।
अब जब आपने y3 y2 लिया तो cb जो लिखना है वो इनका लिखना है, तो y3 का cb तो 0 है, x2 का cb कितना था आपका, देखना जरा, 10 था सर। 10 था, यस, है ना, यहाँ से ऊपर से भी देख सकते हो ये 10 है, तो ये आपका 10 आ गया। y5 का 0 ही रहेगा क्योंकि ये तो आपके सारे सिलेक्ट वेरिएबल्स के cb हमेशा 0 होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको लिखना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्योंकि अब हमारे पास ये x2 बेसिस में आ गया है, तो जो बेसिस में जब भी एलिमेंट आएगा उसका जो आपके पास कोफिशिएंट आएगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर y3 था तो इसका 1, ये मतलब दे शुड ऑलवेज फॉर्म एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी आपके पास बेसिक मैट्रिक्स आ रही है दे शुड फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी तो y3 y4 y5 था तो आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही थी, देखो, है ना। लेकिन अब आपके पास अगर x2 आ गया तो आप अगर कॉलम लेंगे x2 y4 y5 का तो इट इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। y4 y5 तो वही है 0 1 0, लेकिन ये नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले आइडेंटिटी में कॉलम को आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। उसके क्या तरीका है, ये जो पाइवोट एलिमेंट आया है 5, आई विल डिवाइड द 5 बाई 5 से पूरे उसको डिवाइड करेंगे हम ताकि ये 1 बन जाए, और जब ये 1 बन जाएगा ऊपर नीचे 0 बनाएंगे सब्ट्रैक्ट करके। तो फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कन्वर्ट दिस पाइवोट या लीडिंग एलिमेंट, है ना, नाउ कन्वर्ट द लीडिंग एलिमेंट टू यूनिटी। यूनिटी कैसे बनेगा, जो भी आपका एलिमेंट है उसको डिवाइड कर दो उसी से, बाय डिवाइडिंग 5 से डिवाइड कर दो जरा। तो 5 से डिवाइड जब हम करेंगे पूरी रो को डिवाइड करोगे तो 100/5 कितना हो गया, 20, 2/5 1, 0/5 0, 1/5 and 0। इज इट क्लियर? यस सर। बताइए। यस सर। गुड। देखो 1 मिनट रह गया, क्लास खत्म होगी तो आई विल कंटिन्यू अगेन, आई विल फिनिश दिस प्रॉब्लम। ध्यान रखना आपको क्या करना है, ये जो लिंक मैंने शेयर कर दिया है ना, यही लिंक रहेगा हर बार, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी फौरन, जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। ओके, ओके सर। यस। सो आई गॉट दिस, इसको मैंने सेव कर लिया, इस पेज को मैं खोल लूंगा दोबारा। सो नाउ यू गॉट दिस। अब हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग, इस कॉलम का करस्पॉन्डिंग यहाँ 0 लाना है। तो क्या करना होता है जो मैट्रिक्स में हम करते हैं, बिकॉज इट इज योर 1, तो व्हाट आई विल डू, R1 माइनस दिस न्यू R2। ये तो करोगे भाई, हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है ऊपर नीचे, इसको आइडेंटिटी कॉलम बनाना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट R2 माइनस R1 कर देंगे सर। R1 माइनस R2, R1 में चेंज करना है ना, तो यू विल डू R1 माइनस R2, R2 भी नहीं R2 स्टार, क्योंकि R2 तो ये है, R2 का मतलब न्यू वाला R2। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, देखिए 50 माइनस 20 30, 2 इस रो को इससे सब्ट्रैक्ट करना, ध्यान रखना यहाँ ही मत कर देना। तो 2 माइनस 2/5 हाउ मच, 8/5। 8/5, 1 माइनस 1 0 आ गया, है ना, बाकी 1 माइनस 0 1 माइनस 1/5 एंड 0। Similarly here now it is 3 है, तो what you will do, R3 R3 3 times